Now, today's topic is critical speed of shafts. Critical speed is also known as whirling speed, and it is also known as whipping speed. So, as the name indicates, this has got something to do with the rotation of shafts. Shafts are primarily used to transfer rotary power from one place to another, right? And in order to do so, we mount some objects on the staff. Those objects could be pulleys like this, or they could be gears, like this. So, primarily, what we have to do is, in order to transmit power from one shaft to another, if you are using a pulley mounted on a shaft, then you will be making use of a belt arrangement so that it goes to another pulley on another shaft, and thus power is transmitted through the belt and pulley combination. And if you are using a gear, then you have to actually mesh the two gears like this so that the rotation of one shaft is transferred or transmitted to the other shaft. So basically, whenever a mechanical engineer thinks about a shaft or he hears about a shaft, the thing that should be borne in mind is that shafts are primarily used for transmitting rotary power from one place to another, from one shaft to another, from one location to another. Okay. Now, as the topic here is pertaining to the shafts and it is the critical speed of shafts. Now, there is something called as a critical speed or whirling speed or whipping speed. Let us see what happens. So definitely this critical speed, as the name indicates, has got something to do with some dangerous speed. Okay. So if the shaft along with all its mountings starts rotating at a certain speed, then it should be indicative of some dangerous situation. And that is the correct line of thinking. Now let me show you a video to understand what the critical speed or whirling speed or whipping speed does to a shaft. Now, as you can see, this is a small experimental apparatus that has been roughly created by some students, it seems. This is a random video from YouTube, but I think this indicates the concept of whirling speed very clearly. Now, look at what is happening. The student is going to rotate this wheel in which a small rope has been connected to the pulley over here, and this is connected to the white colored shaft. Now this must be some aluminum tubing or something like that. So this is basically acting as a shaft, and as you can see, there is a rotary pulley which is mounted at the center of the shaft, and as you can see, there is a rotary imbalance also. Can you see a small uh, bolt which is extending from the center of the pulley here? क्या आपको एक बोल्ट दिख रहा है इसमें? Yes, sir. Now, when this shaft is going to rotate along with this pulley, this bolt will act as an eccentric mass, and hence it will cause the wobbling of the shaft at a certain speed. Now, just look at the video. From 0 RPM, the rotation has started,
And now as the speed increases, look at how the shaft is wobbling up and down. Actually, it's not simply up and down, it is rotating in all directions. The shaft itself is starting to rotate about its own axis. Now, our logical mind would indicate that this dangerous situation, now see, at any instant of time, if I freeze the shaft, the motion of the shaft, you can see how much it is bent in the downward direction. Now, see, this figure shows actually the extent up to which the shaft is getting bent in the upward, downward, leftward, rightward, all directions. Basically, it is deviating elastically from its mean position. Now, as your mind would indicate, you would think that if the person keeps on increasing the speed of the shaft, the situation is going to become worse and worse. But on the contrary, what happens is if you keep your patience for a while, and if the shaft is not damaged due to this wobbling, if you keep on increasing the speed, actually this wobbling dies out and the shaft becomes surprisingly stable. Let us see now what's happening. See, the person is increasing the speed and the wobbling of the shaft is actually become worse and worse now. But patiently he is increasing the speed, and now look at the pulley. It is rotating at a very high speed and the wobbling of the shaft has completely pacified. And now the shaft is behaving as it is supposed to behave. So what is the critical speed or whipping speed or whirling speed of shaft in this example? See, now again he is slowing down. Now when he is slowing down, the wobbling of the shaft has again started. Okay. The wobbling of the shaft, let us say, is maximum at this RPM. Can you see? And if you keep on increasing the RPM, the wobbling becomes worse. You can see how the foundation, everything is shaking due to the wobbling of this shaft, the whipping or whirling of the shaft. And you keep on increasing the RPM. If you are not afraid, at a certain point, after crossing a certain RPM, everything becomes silent. Now see, the shaft is actually rotating at a very high RPM right now. The pulley is rotating, but the whirling or whipping has stopped. So whirling speed or critical speed of shafts is defined as the value of rotational speed of the shaft in RPM. So whenever you are asked to find the whirling speed or whipping speed, your answer is going to be in RPM. तो आप ये कहोगे कि इतने रोटेशंस पर मिनट पर मेरी जो शाफ्ट है उसके अंदर विपिंग स्टार्ट हो गई, विपिंग या वर्लिंग स्टार्ट हो गई, या फिर आप ये कहोगे कि ये मेरी क्रिटिकल स्पीड थी. सो द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट एंड रोटर अरेंजमेंट is that speed in RPM at which the shaft starts to vibrate extremely violently in the transverse direction. Transverse direction का मतलब longitudinal direction तो ये है, लंबाई है आपके शाफ्ट की. इसके परपेंडिकुलर अगर ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, विपिंग करना स्टार्ट कर देता है, then it is called as the critical speed. So obviously now our aim is to find the critical speed of any shaft and rotor arrangement. तो मतलब आपको इस तरह का कोई सा भी एक shaft rotor arrangement दिया जा सकता है. It could be a vertical arrangement in which the rotor is horizontal like this. It could be a horizontal arrangement in which the rotor is vertical and the shaft is horizontal. So in any case, what you have to find is what is the critical speed. Okay.
And the critical speed is the speed at which the shaft will start vibrating in the transverse direction, or it will start whipping in this transverse direction. In textbooks, the whirling or whipping phenomenon is generally diagrammatically represented by such dotted lines, and the meaning of such dotted lines means these are the basic locations of the mean positions of your shaft. So at an instant of time, you will see your shaft become like this. It will get bent like this. At some other instant of time, it will be bent upwards like this and like this. So we have to find the critical speed of shaft. And now we are going to derive an expression for it. Critical speed of a light shaft. By light shaft, what we are meaning is the weight of the shaft itself is negligible. With a single disc without damping, and obviously we are not considering any damping phenomenon here. So you can see that I have taken a vertical disc and shaft arrangement. These things, when drawn like this, as shown in the figure, they depict bearings. So there are two bearings which are holding the shaft, and generally bearings are used to hold the shaft in place. You already know that. So these are bearings. The bearings could be journal bearings or ball bearings or roller bearings. There are different types of bearings. If you are a student of engineering design, you should already be knowing about some types of bearings. But anyway, depending on the load and the dimensions of the shaft rotor arrangement, you have to change the type of bearings that are holding the shaft at in location. But for now, let us say that these are just bearings. It could be any sort of bearing. Okay. And now look at this figure. It is showing a point here which is named as S. Now this point is the center of the shaft and center, the geometric center of the shaft and the geometric center of the disc also. And there is another point which I am naming as point G. And obviously, as generally we have always depicted, point G is the center of gravity CG. Now why is CG different from S? Can anybody say? The reason I have given here, there will always be mismatch between actual center line which is passing through S and the location of center of gravity which is point G due to manufacturing errors or material density uniformity, non uniformity. मटेरियल डेंसिटी जो आपका मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क में, अगर उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी है तो आपके डिस्क का जो एक्चुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एस पे लाई ना करके थोड़ा सा परे हट के लाई करेगा, इधर टू दिस साइड और टू द लेफ्ट साइड. ठीक है. और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर्स हैं, जैसे कि आपके डिस्क के अंदर कोई ब्लो होल्स रह जाते हैं या इंक्लूजन आ जाती हैं, देयर इज सम पार्टिकल ऑफ sand that has remained in the solidified metallic disc during the process of casting. कास्ट करके बनाया जाता है अधिकतर मेटालिक सॉलिड बॉडीज को. तो अगर कास्टिंग के दौरान उसमें मिट्टी के कुछ कण रह गए या फिर उसमें एयर बबल्स ट्रैप हो गई विच आर कॉल्ड एज ब्लो होल्स, तो इन सब के कारण आपकी जो डिस्क की यूनिफॉर्मिटी है वो अफेक्ट होती है. और यूनिफॉर्मिटी किसी भी तरीके से, मैन्युफैक्चरिंग एरर की वजह से, मटेरियल डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्मिटी, ड्यू टू एनीथिंग, if the disk is non-uniform in material distribution, then you can always expect a deviation of point S, which is actually the geometric center, and point G, which actually contains the vector of your weight. So for this particular analysis, we are considering that the shaft itself does not hold any weight. All the weight is held by the disk, and there is an eccentric deviation between the actual geometric center and the center of gravity, which you denote by small e. So small e is the eccentricity or the eccentric deviation of the CG from the actual geometric center. And now see what happens.
From this situation in which the shaft is perfectly aligned along the centroidal line passing through S, you start rotating the shaft. ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में आप इसको 0 आरपीएम से स्टार्ट करेंगे. नाउ व्हाट हैपेंस इज always the center of gravity will experience an outward throw in the form of the centrifugal force. me omega square की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लगेगी जैसे ही आपने इसको ओमेगा रेडियन पर सेकंड का रोटेशन दिया. ये समझ में आता है क्या आपको? ये एम ई ओमेगा स्क्वायर कहां से आया? बिकॉज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट एट द एक्चुअल सेंटर बट इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम द एक्चुअल सेंटर. ये क्लियर हो गया? यस सर. Yes, sir. तो इसका मतलब है ये शाफ्ट जैसे ही रोटेट होना चालू होगी, ये तो कंपलसरी हो गया कि इस पे एम ई ओमेगा स्क्वायर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा. बट सरप्राइजिंगली अगर इस पॉइंट जी को मैं एस पे ले जाता तो ये फोर्स नहीं आती. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट तो बैठा है ना, तो किसी भी वेट को अगर मैं रोटेट करूंगा तो वो बाहर की तरफ तो थ्रो छोड़ेगा ही, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो जनरेट करेगा ही. लेकिन अगर मैं जी पॉइंट को एस के साथ मर्ज करा दूं तो ये फोर्स नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, कोई बता दे मुझे. ये फोर्स सिर्फ तभी पैदा होती है जब आप इसको एस से अलग रखते हैं. बताओ. सर E इक्वल टू 0 हो जाएगा. क्योंकि E 0 हो जाएगा. एम ई ओमेगा स्क्वायर विल ट्राई टू गेट जनरेटेड. कोशिश तो करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होने की, लेकिन E कितना हो गया अगर आपने G को S के साथ मर्ज कर दिया तो दिस E हैज बिकम 0 एंड देयरफॉर एम ई ओमेगा स्क्वायर विल आल्सो बिकम 0. So this centrifugal outward force which is pulling the disc and the shaft arrangement in the outward direction. तो ये जो centrifugal force है ये एक ऐसे फोर्स की तरह काम करेगी जैसे कि एक धनुष बाण के केस में जो आपका धागा बिल्कुल सीधा टाइट होता है, उस धागे को सेंटर पे पकड़ के आप बाहर की तरफ खींचते हैं तो आपका ये देखो ये एक धनुष बाण वाला सिचुएशन जैसा हो गया. नाउ the shaft has become bent like a bow. एक धनुष की तरह टेढ़ा हो गया, इस तरह से बेंट हो गया. why did it become like this? Because of this external pull. ठीक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ खींच रही है. now surprisingly the situation does not end there. क्या प्रॉब्लम आती है? ये देखो अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक खराब सिचुएशन और बद से बदतर सिचुएशन क्यों होती चली जाती है. इनिशियली the line is like this, okay? Now as soon as a pull occurs and the shaft is bent like this, आपका डिस्क यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर G है और यहाँ पर पहले लग रहा था एम ई ओमेगा स्क्वायर. बट नाउ इफ यू सी एक बार बेंड इसमें क्रिएट हो जाए तो आपके सेंटर से जो ये डिस्टेंस था ये तो अभी भी है, लेकिन अब आपका एक एडिशनल डिस्टेंस आर और पैदा हो गया क्योंकि अब बेंड हो गया. अब ऑलरेडी मुड़े हुए शाफ्ट को अगर आप ओमेगा से घुमाते रहने की कोशिश करें तो अब जो नया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज नॉट सिंपली एम ई ओमेगा स्क्वायर. नाउ द न्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम ई प्लस आर ओमेगा स्क्वायर विच इज इवन वर्स. अब सिचुएशन और खराब हो गई. डिस्क जैसे ही थोड़ी बाहर की तरफ निकली आपका रेडियस चेंज हो गया. अब आपका नया रेडियस जहां पर आपका G लोकेटेड है दैट इज नॉट सिंपली E, दैट इज E प्लस R. तो अब रेडियस चेंज हो गया, रेडियस बढ़ गया तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ गई. अब जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी तो ये इसको और बाहर खींचेगा. जैसे ही ये और बाहर खींचा इसका R फिर चेंज हो गया. नाउ देयर इज अ न्यू R. So R is continuously increasing and eventually now if you look at this worsening situation आपके माइंड में ये बात आएगी, अच्छा मतलब ये तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया कि पहले E से स्टार्ट किया
डिस्क बाहर की तरफ खींची, धनुष जैसा शेप बना और उससे आर बढ़ गया। आर बढ़ गया तो नया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो गया, एम ई प्लस आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। उसके बढ़ने से ये और धनुष की तरह बाहर निकला, और धनुष की तरह बाहर निकला तो आर फिर से इंक्रीज हो गया, फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगा, फिर ये और बाहर निकलेगा। तो ऐसे करते करते तो ये इवेंचुअली टूट जाएगी। This is what comes to your mind. But what we are forgetting is that the shaft is an elastic entity. ये जो shaft है, ये shaft एक elastic piece है. It has got a modulus of elasticity E and all. ठीक है? तो अगर मैं इस shaft को ऐसे bend करता हूं, तो ये shaft अपने आप ही एक restoring force भी पैदा करती है। Now, if I represent K as the transverse stiffness of shaft, ट्रांसवर्स स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट का मतलब ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है। जैसे अपन ने इसको धनुष बाण से कंपेयर किया, तो आप जब तक इसको बाहर की तरफ खींच के रखते हैं तब तक ये बेंड रहेगा। जैसे ही आपने वो एक्सटर्नल फोर्स हटाई, ये वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। Yes, sir. एंड दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स इफेक्ट। और रिस्टोरिंग फोर्स इफेक्ट का वैल्यू कितना होगा? लेट अस से currently the deviation of the shaft center from its original location is small r। तो कोई मेरे को बता दे, अगर k आपकी ट्रांसवर्स स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट है और r उसका करंट डिविएशन है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी? व्हाट विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स? K into R. k into r will be the restoring force। तो r अगर बढ़ रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ रहा है। So we were saying that the outward force is me plus r omega square, which is trying to pull it outwards when the shaft is rotating at omega, and k into r is the restoring force which is trying to pull the shaft back inside। And as you keep on increasing omega, and if you keep your omega constant, अभी आप ओमेगा को बढ़ाते मत रहिए, आप ओमेगा को एक पॉइंट पे लाके कांस्टेंट कर दीजिए। when your omega becomes constant, then this outward force and the inward force, they balance out each other। Now the situation will only change if you increase the value of omega। आपने ओमेगा को अगर बढ़ाया तो ही ये आपका डिविएशन बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या है, आर इंक्रीज होगा। आर इंक्रीज होगा तो सिर्फ आउटवर्ड फोर्स ही नहीं बढ़ेगी, इनवर्ड के इंटू आर भी बढ़ेगा, यानी रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगी। तो वापस से एक नए ओमेगा पे एक नया इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन उस केस में भी के आर विल बी इक्वल टू एम ई प्लस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। So using this concept, let us go back and start a derivation। ठीक है? At any constant omega while the shaft is rotating, the centrifugal force pulling it outwards is given by m omega square r plus e। ये आपको समझ में आ ही गया। There will be a restoring force equal to k into r, which will try to pull it back। In this case, k is the transverse stiffness of the shaft। ठीक है? So we can say that at any constant omega, this relationship will always hold true, and therefore you derive the expression of the deviation of the shaft from its original center। ये small r क्या है, ये देखिए, आपका जो शाफ्ट का जो नया डिविएटेड पोजीशन है, उससे आपके ओरिजिनल शाफ्ट की मीन पोजीशन का जो डिस्टेंस है, ये है r। स्मॉल e तो परमानेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस डज नॉट चेंज। ठीक है? तो स्मॉल r की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर e अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। इसको आप रीअरेंज करेंगे, देखो इधर दोनों साइड में r है, ये मैंने डायरेक्टली इस इक्वेशन से ये बना लिया है। सो आई लीव इट अप टू यू कि इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे आती है। r को आइसोलेट करना है आपको।
एंड नाउ यू अप्लाई सम फर्दर लॉजिक। आपने बोला कि भाई इस फॉर्मेट से हम बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, हम तो अपने पुराने तरीकों पे वापस आना चाहते हैं, तो इसलिए आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेट अस डू दिस कैलकुलेशन। के बाय एम को अपन ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि ये ओमेगा एन स्क्वायर क्या चीज है। कोई समझा सकता है क्या? यहाँ पर मैंने वर्बली तो लिख रखा है, वेयर ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ द शाफ्ट रोटर सिस्टम। इसको कोई जरा ढंग से समझा दे मेरे को, क्या है ये चीज? सर वो शाफ्ट के ऊपर वो लगा हुआ है ना, हाँ। पुली, हम्म, उस उसकी वाइब्रेशन। उसकी वाइब्रेशन, ये तो बात थोड़ी क्लियर नहीं हुई, उसकी वाइब्रेशन कैसे? देखो, एक तो वाइब्रेशन अपन अभी पढ़ रहे हैं, वी आर ऑलरेडी स्टडिंग अबाउट द क्रिटिकल स्पीड, तो ये ओमेगा एन क्रिटिकल स्पीड है क्या? और नहीं। ये क्रिटिकल स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं है। अंडर रूट के बाई एम का क्या मतलब है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए, ठीक है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं एक शाफ्ट ले लूं, उस पे एक रोटर लगा दूं, आई एम ड्राइंग अ लाइन डायग्राम, ठीक है, पूरा 3D व्यू नहीं बना रहा, और इसको रोटेशन नहीं दे रहा, so please mind omega is 0, it is simply standing like this। अब इस स्टैंडिंग पोजीशन में जैसे एक्चुअली किसी धनुष के धागे को बाहर की तरफ खींचा जाता है, उस तरीके से आई एम ब्रिंगिंग माई हैंड एंड आई एम पुलिंग दिस डिस्क आउटवर्ड। मैं खींच रहा हूं इसको अपने हाथ से, मैंने डिस्क को पकड़ा और लिटरली इसको बाहर की तरफ ऐसे खींचा जैसे किसी धनुष के धागे को बाहर खींच रहा हूं। रोटेशन नहीं है, भले ही आपके पास शाफ्ट और रोटर सब कुछ है, बट प्लीज वंस अगेन माइंड इट, देयर इज नो रोटेशन, ठीक है? सो व्हेन आई पुल इट आउटवर्ड्स व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर बियरिंग लगे हुए हैं, तो ये बियरिंग इसको यहाँ से छूट के बाहर जाने देंगे नहीं, लेकिन शाफ्ट बेंड तो हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, और ऐसे बेंड जब हो जाएगी फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। Do you see? I am simply plucking the shaft as if it were the string of a bow। तो इसको मैंने खींच करके छोड़ दिया, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, वाइब्रेशन होगी कि नहीं होगी? होगी सर। इस तरह की वाइब्रेशन होगी। नाउ द शाफ्ट विल वाइब्रेट लाइक दिस। टू एंड फ्रो डायरेक्शन में इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। And please remember, this sort of transverse vibration of your shaft and rotor arrangement has nothing to do with rotation or critical speed। इसका critical speed से और rotation से कोई नाता रिश्ता ही नहीं है। ये तो simply आपकी transverse vibration का केस हो गया, जो आपने पहले ऐसे भी पढ़ा था भाई, अपन ने ये किया था कि नहीं किया था? सिंपली सपोर्टेड बीम ले ली थी, उसके ऊपर एक डब्ल्यू वेट लगाया, तो इससे ऐसे सैगिंग होगी, फिर उसके बाद इसकी अप डाउन जो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली थी। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, द सेम थिंग हियर, ठीक है? दीज आर द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन एंड दिस ओमेगा एन that we obtain as the ratio of k by m। इसमें k तो क्या चीज है? k is a property of your shaft and m is the mass of the center disk or pulley or gear whatever you have attached here। तो आप एक मास सेंटर पे लगाएं ऐसे शाफ्ट के जिसका की स्टिफनेस k है, और उसको खींच करके छोड़ दें, तो आपके जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी होगी उसको ओमेगा एन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि अब ये क्या है, आपकी शाफ्ट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रही है विद स्प्रिंग कांस्टेंट के, और आपने सेंटर पे मास लगा रखा है एम। तो अब इस फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कोई अगर आपसे पूछे, तो वापस से वही पुरानी कहानी, अंडर रूट के बाई एम, दैट्स इट। सो ओमेगा एन
when I am writing in my derivation, you must remember it is the free natural frequency of transverse vibrations of the shaft rotor system, and it has got nothing to do with rotation. ठीक है, समझ में आ गया क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कि ये ओमेगा एन क्या चीज है? हाँ सर। तो कोई सा भी शाफ्ट रोटर असेंबली आप लेके आओगे उसका एक ओमेगा एन तो होगा ही होगा, जिसका कि रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, so anyway, if we have a m in equation and k in equation, we can always construct a concept like this: k by m is omega n square. And now what I'm going to do is dividing the numerator and denominator of equation by m. m से आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करें तो इक्वेशन वही रहेगी, बट इवेंचुअली यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये बॉक्स इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे बॉक्स कर नहीं रखा है, मगर आप लोग जब ये नोट्स मिलेंगे तो आप अपने नोट्स बनाते टाइम इसको बॉक्स जरूर कर लें। तो दिस इक्वेशन इज बेटर रिमेंबर्ड लाइक दिस। मैं आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर देता हूं। कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर ई अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसको आसानी से याद रखा जा सकता है, वेयर स्मॉल आर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ऊपर भी स्क्वायर है, इट इज आर स्क्वायर ई अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल आर जो है आपको याद होगा बहुत पहले ही अपन ने फ्रीक्वेंसी रेशियो नाम दिया था इसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जब ये नोट्स बनाए तो इसमें ये जो रेडियस है, the deviation of the shaft, I mistakenly denoted it with small r. तो अब मैं जहां यहाँ नोट्स में तो स्मॉल आर को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि स्मॉल आर को मैंने कोई दूसरी चीज बना दिया है। लेकिन अगर आप इसको डायग्राम के स्टेज से ही स्मॉल आर ना लिख करके कैपिटल आर लिख दें तो आपकी समस्या हल हो जाती है। नाउ कैपिटल आर इज द डेविएशन ऑफ द शाफ्ट and omega upon omega n can be replaced with your standard terminology of frequency ratio r. तो आपको जैसे याद रखना है वैसे आप याद रख लीजिए। अगर आप चाहो तो इसी फॉर्मेट में याद रख लो। आई एम जस्ट गिविंग यू अ मोर कंसाइज इक्वेशन टू रिमेंबर। ये देखिए, इसको याद रखना थोड़ा सा ज्यादा आसान है, इसमें थोड़े से रेशियोज कम है। सिंपली आर स्क्वायर ई अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इक्वेशन? आपने तो डेविएशन निकाल लिया, लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट क्रिटिकल स्पीड, यानी कि वो स्पीड जिस पे ये जो डेविएशन है आर, ये कितना हो जाए? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब कोई फिगर थियोरेटिकली? सर इनफाइनाइट। एब्सोल्युटली राइट, इनफाइनाइट हो जाए रेडियस। तो यानी कि क्रिटिकल स्पीड वो रेजोनेंट स्पीड है या फिर वो डिस्ट्रक्टिव स्पीड ऑफ योर रोटेशन ऑफ शाफ्ट है जिस पे कि ये जो आर की वैल्यू है आपकी डिविएशन की, ये इतनी ज्यादा बढ़ती ही चली जाए या इतनी ज्यादा हो जाए कि ये इनफाइनाइट हो जाए। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आर का अगर एक्सप्रेशन आ गया, इन ऑर्डर टू आइसोलेट दैट क्रिटिकल स्पीड ओमेगा, ये देखो ये है अब अपना टारगेट कि ये ओमेगा कितना हो जिससे कि ये आर इनफाइनाइट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डिनोमिनेटर को किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0। You have to equate the denominator with 0, and when you do that you will see you are actually putting 1 minus r square equal to 0. अब देखो ये, अब मैं इस नोटेशन को यूज कर रहा हूं। I am trying to make r equal to infinity, and in order to do that I have to equate my denominator with 0. So that means r square equal to 1 or r equal to 1. That means omega upon omega n equal to 1, or in other words omega equal to omega n.
condition for critical speed. ये है बात। तो अब इसमें ओमेगा क्या है और ओमेगा एन क्या है, ये आपको फिर से नहीं भूलना है। ओमेगा एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल रोटेशनल स्पीड ऑफ योर शाफ्ट, एंड ओमेगा एन, सबसे पहली बात, इस ओमेगा एन की वैल्यू है अंडर रूट के बाई एम, एंड दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रोटेशन। इसकी वैल्यू आरपीएम, सॉरी, इसकी वैल्यू रेडियन पर सेकंड में आती है। अंडर रूट के बाई एम करोगे तो जो आंसर आएगा वो रेडियन पर सेकंड में आएगा, और आप एक्चुअल रोटेशनल स्पीड ऑफ शाफ्ट लोगे वो भी रेडियन पर सेकंड में आ सकती है। तो ये बोल रहा है कि क्रिटिकल स्पीड तब होती है जब आपके शाफ्ट को, अब देखना मेरे एक एक शब्द ध्यान से सुनना, ठीक है, तब जाके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्रिटिकल स्पीड किसको कहते हैं? तो ये बोलते हैं शाफ्ट लो, डिस्क लो, उसको धनुष बाण की तरह खींच करके छोड़ो, यानी कि रोटेशन मत दो, पहले उसको धनुष बाण की तरह खींच करके छोड़ो, और जो फ्री वाइब्रेशन हो रही है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के लाओ। बोले साहब ये रही अंडर रूट के बाई एम। तो बोला ये रेडियन पर सेकंड में है ना? बोला हाँ साहब बिल्कुल। तो बोला कि अब इसी न्यूमेरिकल वैल्यू पे अगर आप शाफ्ट के रोटेशन को लेके आ जाओगे तो शाफ्ट रोटर सब टूट के बाहर आ जाएगा। तो दिस इज अ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये ओमेगा एन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है और ये ओमेगा एक्चुअल रोटेशन की स्पीड है। तो आप बेसिकली सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, और कॉन्सेप्चुअली ये दोनों बिल्कुल ही परे चीजें हैं, बट दिस इज द कंडीशन फॉर क्रिटिकल स्पीड। तो यू कैन से व्हाट इज क्रिटिकल स्पीड। आपकी अब डेफिनेशन की बात आ गई, ठीक है। नाउ व्हाट, हाउ वुड यू गिव द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल स्पीड। जो टेक्निकल बंदा नहीं है उसकी डेफिनेशन क्या है क्रिटिकल स्पीड की? क्रिटिकल स्पीड इज दैट रोटेशनल स्पीड ऑफ द शाफ्ट एंड रोटर सिस्टम at which the deviation of the shaft center from its original locations becomes very high and it can cause destruction of the system. ये तो एक साधारण आदमी की डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब आपको जब ये चीज पता लग गई है कंडीशन ऑफ क्रिटिकल स्पीड, तो हाउ वुड यू डिफाइन, हाउ वुड यू पुट इट इन योर आंसर कॉपीज? यू विल राइट critical speed is that actual rotational speed of the shaft which when numerically becomes equal in radians per second to the vibrational frequency, the vibrational transverse vibrational frequency of the shaft rotor system, then this condition is called as critical speed. और उसके आगे आप साधारण आदमी की बात को और ऐड कर देंगे, in the condition of critical speed or when the shaft reaches critical speed, the shaft starts to wobble violently about the transverse axis and the system can completely fail. पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। इसका अगर आपको उदाहरण देखना है कि भाई सिस्टम कैसे फेल होता है, आप ये वीडियो देखिए। Now instead of having a simply supported like structure, we are having a cantilever like structure. ये देखिए लेथ का जो चक है उस पर इन्होंने एक शाफ्ट और दो रोटर लगा दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो रोटर लगाओगे तो दो आपकी क्रिटिकल स्पीड्स होगी, तीन रोटर लगाओगे तो तीन क्रिटिकल स्पीड्स होगी। नाउ लुक एट द बॉटम, ये आरपीएम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, अभी 600 आरपीएम पे आ गया है। अच्छा अब ये कम कर रहे हैं 575 आरपीएम, ठीक है। एक्चुअली दे आर रिड्यूसिंग द आरपीएम। ये और भी फनी है, देखो 550, 525, आप देखिए शाफ्ट अब वायलेंट होता जा रहा है। 512, अब देखो शाफ्ट का क्या हो रहा है। नाउ सी, देखो ये टूट गया सब कुछ। आपने देखा
ये वीडियो आपको समझ में आया क्या हुआ क्या था इसमें? यस सर। हमने देखा कि वीडियो में शाफ्ट और रोटर को स्पीड बढ़ा नहीं रहे थे, ये हाई स्पीड पे अच्छे से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्पीड को कम करते लाए ये अपनी क्रिटिकल स्पीड के पास आती चली गई। क्रिटिकल स्पीड न्यूमेरिकली एक वैल्यू है आरपीएम की, जिस पे अगर आपने शाफ्ट को घुमा दिया तो शाफ्ट और रोटर सब टूट जाएगा। और उसकी कंडीशन क्या थी? दिस इज द कंडीशन। तो यानी कि आपका जो ओमेगा था, दिस वाज एक्चुअली वेरी हाई इन द वीडियो दैट वी सॉ, ठीक है। और आप उसको कम करते 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 ओमेगा एन की फिक्स्ड वैल्यू पे जैसे ही लाए, शाफ्ट और रोटर सब टूट टाट गए। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो द क्रिटिकल स्पीड एक्चुअली ऑन अ नंबर लाइन कैन बी शोन लाइक दिस। आपकी जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा एन तो कहीं यहां पर फिक्स है, ठीक है। आपकी शाफ्ट और रोटर सिस्टम के लिए ओमेगा एन इस पॉइंट पे आता है। लेट अस से दिस इज 20 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर आप जीरो से लेकर के ओमेगा को बढ़ाना स्टार्ट करो। ओमेगा को आपने 1 किया, 2 किया, 3 किया, एंड सो ऑन, यू आर इंक्रीजिंग। नाउ यू सी, as you start approaching this value of omega n, your shaft starts to, देखो यहां पर तो शाफ्ट की वॉबलिंग इतनी थी, 2 पे इतनी थी, 3 पे इतनी थी। नाउ as you start approaching, the wobbling of your shaft increases and increases, omega n पे आते ही it goes to infinity। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भैया अब अपन स्पीड कैसे बढ़ाएं, बल्कि मैं तो कहूंगा स्पीड बढ़ा दो और अच्छा है। तो आप जैसे ही स्पीड को बढ़ाएंगे, ओमेगा एन के पार जैसे ही ओमेगा निकलेंगे, यू विल सी दैट द वॉबलिंग हैज एक्चुअली स्टार्टेड टू डिक्रीज। और जैसे ही ओमेगा एन से दूर जाओगे, वापस से आपकी स्पीड नॉर्मलाइज हो जाएगी। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो दिस जोन इज द डेंजर जोन। तो आप जनरली ये कहते हैं कि भाई अपनी शाफ्ट को, ये जो जोन है, यानी कि इतने से ओमेगा की वैल्यू इधर से लेकर के ओमेगा की वैल्यू इधर तक, या तो इससे कम पे चला लो या इससे ज्यादा पे चला लो, ये सेफ है। इसके बीच वाला जो ये जोन है, दिस इज द रेड जोन और डेंजर जोन। क्योंकि आप यहां पर, इसके अंदर बैठा है आपका क्रिटिकल स्पीड ओमेगा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि शाफ्ट की जो स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड के आजू बाजू की डेंजरस जोन से या तो आप कम पे चलाओ या ज्यादा पे चलाओ। वो ज्यादा और कम दोनों सेफ रेंजेस हैं। सिर्फ एक पतली सी रेंज इन बिटवीन जो होती है, विच कंटेन्स योर क्रिटिकल स्पीड ओमेगा एन, दैट इज टू बी अवॉइडेड फॉर अवॉइडिंग विपिंग ऑफ शाफ्ट। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? यस सर। ओके। Okay, now let us carry on. एक और ऑब्जर्वेशन यहां पर मैंने बताया है, आप इसी एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। When omega is less than omega n, look at this expression। ये जो एक्सप्रेशन अपन ने क्रिएट किया था, जब ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू ओमेगा एन से कम होती है, यानी कि क्रिटिकल स्पीड से कम पे आप चला रहे हो, ठीक है, तब तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा। वाई? क्योंकि ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा हो बड़ा हो। लेकिन नीचे जो है ओमेगा बाय ओमेगा एन, इस कंडीशन में लेस देन 1 हो जाएगी। और लेस देन 1 यानी फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो और भी छोटी हो जाएगी। तो 1 में से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हो तो डिनोमिनेटर रिमेन्स पॉजिटिव, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर ऑपरेटिंग द सिस्टम अबव योर क्रिटिकल स्पीड? क्रिटिकल स्पीड से ऊपर अगर आप स्पीड पे चला रहे हो, अच्छा ये बताओ, क्रिटिकल स्पीड से ऊपर चलाना सेफ है कि अनसेफ है? सेफ है सर। इट इज सेफ। यही चीज एम्फसाइज करनी है, इंजीनियर्स को इतना ही क्लियर होना चाहिए। जनरली आम आदमी तो बोलेगा अरे भाई अगर
अगर 20 आरपीएम पे वायलेंट रोटेशन हो रहा है तो 40 आरपीएम पे तो क्या होगा? ये साधारण आदमी की सोच है, लेकिन एक वाइब्रेशन इंजीनियर को पता है 40 आरपीएम पे तो बहुत प्यार मोहब्बत से चलेगा, 20 आरपीएम पे खतरा है। तो आप ज्यादा कर दो स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है, या तो बहुत कम कर दो या बहुत ज्यादा कर दो, क्रिटिकल स्पीड के पास मत चलाओ। ठीक है। नाउ if omega is greater than omega n then the denominator becomes negative, ये अपन देख सकते हैं, और उससे आपके r की वैल्यू माइनस आएगी। तो अब ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे समझा रहे हैं कि ठीक है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इसका जरा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाओ कि कभी तो r प्लस है और कभी r माइनस है, इसका क्या मतलब है? द ओनली थिंग दैट इट सिग्निफाइज इज शोन इन दिस फिगर। जब आपकी आर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपका डिस्क का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और उसका जो एक्चुअल सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर, उसका अरेंजमेंट इस तरह से होगा, यानी कि द सपोज्ड हाइपोथेटिकल सेंटर, उसके बाद जी, फिर उसके बाद एस, ऐसा आएगा। और पहले अपन ने फिगर में कैसा लिया था? सपोज्ड ओरिजिनल सेंटर, फिर एस, फिर जी। तो ये माइनस आर होने का मतलब है ये जी और एस की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये शाफ्ट जिस पोजीशन में घूम रहा है, जी बाहर की तरफ था तो जी अंदर की तरफ हो जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ आर बीइंग नेगेटिव, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज यू शुड रिमेंबर कि आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो आर की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस आर होती है, यानी कि आर की दो पॉसिबल वैल्यूज है जो कि अलग अलग ओमेगा पे आती है। न्यूमेरिकल वैल्यू वही आएगी, लेकिन एक ऐसा ओमेगा होगा जो कि ओमेगा एन से कम है तो उसमें तो प्लस आर आएगा, और एक ऐसा ओमेगा मिलेगा जो कि ओमेगा एन से ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, और ये अपने न्यूमेरिकल में इस कॉन्सेप्ट को यूज भी करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? दैट द वैल्यूज ऑफ आर व्हेन टेकन एज प्लस एंड माइनस दे एक्चुअली गिव टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा, और दोनों ओमेगा पे आर की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन एक ओमेगा पे तो आर प्लस आएगा और दूसरी ओमेगा पे आर नेगेटिव आएगा। और जनरली ये जो नेगेटिव वाला ओमेगा है वो आपकी ओमेगा एन से ज्यादा रहती है। और बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये परमिसिबल रेंज ऑफ स्पीड निकालने के काम आती है। इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। दैट मीन्स इफ समबडी सेज कि भाई मेरा कैलकुलेशन करने पे एक तो आर आया -1 और एक आर आया +1, आना ही है, दो वैल्यूज आती है इसकी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? तो एक बार आपका जो फॉर्मूला है, अच्छा एक तो पहले अपन इसको स्मॉल आर ना लिखें, कैपिटल आर लिखते हैं। आपका फॉर्मूला है कैपिटल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ई अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, आप ये कहते हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू डालने पे एक तो ऐसा ओमेगा है, इसमें स्मॉल आर क्या है? ओमेगा अपॉन ओमेगा है। तो एक तो ऐसी ओमेगा है जो कि आप ओमेगा बाई ओमेगा एन रख के आर बनाते हो और इसमें रखते हो, तो आपकी आर जो है वो नेगेटिव आएगी, और एक बार आएगी किसी दूसरे ओमेगा पे पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है? आप एक बार आर को माइनस रखो और उससे ओमेगा निकालो, एक बार आर को प्लस रखो और उससे एक दूसरा ओमेगा निकालो। सो बेसिकली यू गेट ऑन योर नंबर लाइन एक ओमेगा यहां मिलेगी, लेटस से ओमेगा 1, एक ओमेगा यहां मिलेगी, लेटस से ओमेगा 2। ठीक है, और इसके बीच में कहीं पर है आपका क्रिटिकल स्पीड ओमेगा एन। तो आपको बेसिकली ये जो दो ओमेगा मिलते हैं, ये ओमेगा 2 मिला आपको आर की नेगेटिव वैल्यू पे, ये ओमेगा मिला आपको आर की पॉजिटिव वैल्यू पे। तो आपको बेसिकली ये रेंज मिल जाती है। आप ये बता सकते हो कि हाँ भैया अब ये मेरे को दो बॉर्डर्स मिल गए हैं, और अब मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी शाफ्ट का ओमेगा या तो ओमेगा 1 से कम रखें या ओमेगा 2 से ज्यादा रखें।
ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में कभी भी शाफ्ट की स्पीड नहीं आनी चाहिए. This is the band zone because inside this zone stands a monster which is the critical speed. इसके पास अगर आप आ गए, इस स्पीड के दोनों तरफ से अगर आप इस स्पीड के पास अप्रोच करते हैं, यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में कोई सी भी स्पीड पर गाड़ी चलाओगे या शाफ्ट को घुमाओगे, तो वेरी हाई एम्पलीट्यूड विल बी obtained. Beyond that, the amplitudes are very less. This is the meaning. ठीक है. तो ये जो फॉर्मूला है अभी आपको बताया, ये प्लस माइनस आर वाला, तो एक बार आर को प्लस रख के ओमेगा निकालो, एक बार आर को माइनस रख के ओमेगा निकालो, इससे आपको ये रेंज मिल जाती है. यू गेट द सेफ ऑपरेटिंग रेंज फॉर ऑपरेटिंग योर शाफ्ट. समझ में आया कि नहीं आया आपको? है भाई, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है. अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी क्रिटिकल स्पीड करके एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक टू गो थ्रू सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. वी आर रेफरिंग ट्यूटोरियल शीट नंबर 3, और ट्यूटोरियल शीट नंबर 3 में आपको दो मैंने एग्जाम्पल्स कवर कराए हैं. यू कैन नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके क्रिटिकल स्पीड में से. तो अगर आपने ये दो क्वेश्चंस अच्छी तरह से पढ़ के समझ लिए, तो यू कैन बी सेफली एज्यूमिंग कि आपका प्रिपरेशन क्रिटिकल स्पीड के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस बस इन्हीं टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे रोटेट करते हैं. 12 और 13 में मैंने सारे केसेस कवर कर लिए. ठीक है. So let us read question number 12. A rotor has a mass of 10 kg. तो जल्दी से अपन अपना डेटा नोट करते हैं. मास ऑफ रोटर 12 kg है, तो m is 12 kg. Mounted midway on a 24 mm diameter horizontal shaft. तो horizontal shaft की बात कर रहे हैं ये. Sir, 10 kg है mass. एक सेकेंड, सॉरी मैं 13 का वो देख रहा था. द रोटर ऑफ मास 10 kg, so I have to write 10 kg. Sorry, thank you. Okay, the shaft has a mounting exactly at the center. इसी का मास है 10 kg. ठीक है. और क्या बोल रखा है? और बोल रखा है 24 mm डायमीटर की शाफ्ट है. ठीक है. ट्वेंटी 24 mm को अपन कितना लेंगे? 5 मीन्स डायमीटर 0.024 मीटर्स. ठीक है. मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. 24 mm है, so we will divide it by 1000 to get diameter in meters. अच्छा, the shaft is supported at the ends by 2 short bearings. 2 short bearings पे सपोर्टेड है बता रहे हैं. अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में, उसमें मैं आपसे बात करूंगा लॉन्ग बियरिंग्स. ठीक है. नाउ बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में आपके सारे केसेस कवर हो जाते हैं. ठीक है. ये किसका ऑडियो चालू है, एक बार बंद करें. अमन शर्मा, अमन कुमार गुप्ता, प्रदीप जांगेड, आप सबके माइक चालू हैं. शॉर्ट बियरिंग और लॉन्ग बियरिंग को समझना जरूरी है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट समझे बिना
आप लोग इन क्वेश्चंस की गहराई तक नहीं जा सकते। सबसे पहले देखें शॉर्ट बियरिंग्स का मतलब क्या होता है। बॉल बियरिंग कैसे बनाते हैं अपन? बॉल बियरिंग ऐसे होता है। लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉल बियरिंग। देयर इज एन इनर रेस, there is an outer race, and in between there are balls. इसको असेंबल किया जाता है, राइट? इन सबको असेंबल कर दें तो आपका असेंबल्ड लुक जो है वो ऐसा आएगा। क्लियर और नॉट? ऐसा ही होता है ना बॉल बियरिंग। Yes, sir. अब शॉर्ट बियरिंग का मतलब होता है, नाउ लुक एट द बॉल बियरिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड हियर। यहां से अगर देखोगे तो आपको जो बॉल बियरिंग का जो ऑर्थोगोनल व्यू मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। एग्रीड? Yes, sir. अब अगर आप इमेजिन करो कि इसकी जो स्लीव लेंथ है, ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, अगर ये मैं बढ़ा दूं तो आपकी बॉल बियरिंग जो है गॉट इट? आप समझ रहे हैं मैं बॉल बियरिंग का कौन सा वाला डायमेंशन बढ़ा रहा हूं? मैं इसका डायमीटर नहीं बढ़ा रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द बॉल बियरिंग। सो नाउ इफ आई लुक एट द बॉल बियरिंग फ्रॉम हियर, अच्छा इसके अंदर ये छर्रे जो है वो अभी भी यहाँ पर है। नाउ इंस्टेड ऑफ बॉल्स यू विल बी यूजिंग सिलिंड्रिकल रोलर्स। अब या फिर मल्टीपल लेयर्स में आप बॉल्स यूज कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, बट द जिस्ट ऑफ द मैटर इज दैट द स्लीव लेंथ और द विड्थ ऑफ योर बियरिंग विल बी लार्जर। ठीक है? तो सच बियरिंग्स व्हिच हैव अ स्मॉलर विड्थ, अच्छा अब इसका ऑर्थोगोनल व्यू जो होगा वो ऐसा होगा। इन शॉर्ट, such bearings having a very thin width are called as short bearings. तो शॉर्ट बियरिंग का मतलब आप ये मत सोचना कि बहुत छोटा बियरिंग होगा। इट कुड बी अ वेरी लार्ज बियरिंग, इसका डायमीटर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर इसकी स्लीव विड्थ बहुत कम है तब आप इसको शॉर्ट बियरिंग कहते हैं। और अगर इसकी स्लीव विड्थ ज्यादा है देन इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग बियरिंग। दिस इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट बियरिंग एंड लॉन्ग बियरिंग। चलो अब अपन नेक्स्ट वाली क्लास में इन दोनों न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। For now, let us stop and I will let you go to the next class. ये शॉर्ट बियरिंग और लॉन्ग बियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको? ये बता दो। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let me take your attendance. Please stay with me.